Okay, so we'll continue with the second session of building block. So last class, it took me around 45 minutes to 1 hour to explain to you what the CFA curriculum is all about. Okay, the type of topics that are there, learning outcome statements, the result pattern. So we took a lot of time into all that, and the study took place only for the last 1 hour or so. Okay, so if you would look back at your copy, we were discussing the time value of money, okay, through the calculator, TVM through the calculator. Remember all of you that this building block class is not a substitute of the main time value of money. But there is a chapter time value of money. When I do it, it takes 7 classes separately and DCF another 4 classes. But यहाँ पे the focus is that prima facie you get attuned to the calculator as well as time value of money. Okay, so there may be places where you may feel that no, knowledge wise 10 upon 10 you're not totally satisfied, but you'll have to just understand these are like building blocks. Okay, when we go into each of the topics individually, then the thing will be explored in much more detail. Okay, so the last discussion that took place was relating to something called DCF, that is discounted cash flow technique. Okay, now discounted cash flow technique. And if you focus on the English language, discount का मतलब होता है to do present value. Discount means something divided by 1 plus r. Something divided by 1 plus r square, present value. कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है, वो टेक्निक चल रहा था. अपने वहीं से फिर से पिकअप करेंगे, ठीक है ना. तो इन दैट केस उसको पिकअप करने के लिए राइट डाउन एन एग्जाम्पल. An investor is evaluating the stock of X Limited. An investor is evaluating the stock of X Limited presently trading at. Evaluating the stock of X Limited presently trading at 640. तो 640 is the share price. बाजार में जाम चल रहा है 640. Full stop. He has an investment horizon. He has an investment horizon of 6 years. He has an investment horizon of 6 years. यानी 6 साल बाद बेच देगा. 6 साल तक पैसा लगाना है. The following table shows a forecast of. The following table shows a forecast of dividend over the next 6 years. The following table shows a forecast of dividend over the next 6 years. Over the next 6 years. Years 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है ना, कॉपी कर लो. Years और dividend per share. तो आने वाले 6 साल का डिविडेंड का फोरकास्ट है. ईयर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड नाउ डिविडेंड पर शेयर. डिविडेंड पर शेयर इज गोइंग टू बी 45, 48, 48, 48, 50, 54. ठीक है. अब एक सेकेंड डाइवर्ट कर रहा हूँ. Caliber in real life, not in the exam. Caliber in real life lies in making a forecast. Understood? ये forecast करना requires a lot of caliber. Examinations में तो the forecasts are given many a times. We just have to do the math of it. But in real life, the company, कौन से industry में है, cement, steel, how is the industry going to perform compared to the economy? And is the company ka management very solid? Are they going to beat their competitors? Are they going to increase their market share or decrease their market share? What type of sales the company will have? What type of cost the company will incur? What type of profits the company should earn? And then what type of dividend the firm will pay? Do you understand? It's so difficult. Real life. And we are, as a part of different topics like economics, you get to know about the economy. ठीक है, equity. You get to forecast all these things. So these various topics, they go along to increase your forecasting ability. Understood? तो यहाँ पे ये सब एकदम ब्लैंड हो गया. Why? Because मैंने तो forecast दे ही दिया. ठीक है. तो बट रियल लाइफ पे क्या चैलेंज क्या है, 45, 48 तक कैसे निकालते हैं. ठीक है, और उसके लिए पूरा टाइम लग जाता है समझाने में, ऑल टॉपिक्स ऑल थ्रू द लेवल्स. ठीक है ना. खैर, लेट्स कंटिन्यू.
share price at the end of 6 years, share price at the end of 6 years, share price at the end of 6 years is expected to be, share price at the end of 6 years is expected to be 720 P6, 720, full stop. Similar companies are providing a return of 18% per annum. 18% per annum. Full stop. Question number 1. Find out the intrinsic value of the stock. Find out the intrinsic value of the stock. Find out the intrinsic value of the stock. Of the stock. Question number 2. Give your investment advice. Give your investment advice. Investment advice. Okay. So, ये data है. Those who have joined us 5 minutes late, we have just started. This is the sum. There is a stock trading at 640. We are thinking about whether to buy or not. We have a horizon of 6 years. 6 साल तक stock को hold करेंगे फिर बेच देंगे. The dividend forecast is as follows. Dividend 2, 3, 4, 5, 6. And the share price at the end of 6 years is expected to be 720. Similar companies are providing a return of क्या लिखा है मैंने? 18%. तो जाहिर है वो required rate of return हो गया ना? Because what return should you require? What is available elsewhere? Opportunity cost. Okay, opportunity cost. Okay, I'm buying the stock. Sir, I could have bought some other stock similar, which can give me 18%. So my required rate of return is what? 18%. Required rate of return. So in that case, we have to find out the value of the stock. तो topic चल रहा था last class DCF. DCF का मतलब whether share हो या bond हो या project हो या कुछ भी हो, ultimately जाके जो पैसा आने वाला है future में, मैं उसका present value आज देने तैयार हूँ. Which means एक बार verbally बात कर रहे हैं. 45 के बदले आज we are ready to pay 45 divided by 1.18. 48 के बदले 48 by 1.18 square. Clear? फिर 48 by 1.18 cube. फिर 48 by 1.18 power 4. फिर 50 by 1.18 power 5. Last term बोलो. 774. 54 नहीं, 774. 54 plus 720 ना. Money is money. Dividend आए, share price बेच के आए. Ultimately तो पैसा है ना. तो 54 plus 720 6th year के end में आएगा. 54 plus 720 D6 plus P6 774 divide by 1.18 power 6. ये पूरा का पूरा intrinsic value है. But in real life Excel sheet पे करते रहते इसको, बस चूज करते ये पूरे कैश फ्लोज को और 18 प्लग करते प्रेजेंट वैल्यू आ जाता रियल लाइफ में. ओके वैसे ही इन द एग्जाम कैलकुलेटर में डालना है, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा. दे डोंट वांट अस टू डू थिंग्स विच आर नॉट डन इन रियल लाइफ. बट येस इंटरनली स्पीकिंग क्या आपको आना चाहिए? यस तुमको अगर 45 by 1.18 प्लस 48 by 1.18 स्क्वायर ये तुमको आता ही नहीं है तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कॉन्सेप्ट फ्लॉड है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक है, जो कहीं ना कहीं हर्ट करेगा. होता है ना, आता है सर वो कैसे पुल करते हैं आई नो, बट अपने अल्टीमेटली एफिशिएंटली कैलकुलेटर से करते हैं. सही बात है. तो पहले अपने काम करते हैं, इसका इक्वेशन लिख के करते हैं, ठीक है, फिर कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से. एग्जाम अगर होता तो एक चीज़ में लिख के नहीं करते. एग्जाम्स आर लाइक विदाउट राइटिंग अप्रोच, ओनली कैलसी एंड माइंड, नथिंग एल्स. ठीक है ना. चलो सॉल्यूशन. नोटेशन याद है क्या इंट्रिंसिक वैल्यू का? क्या? IV0. ओके IV0. और इसका मतलब क्या है? नॉट द नेम, मतलब क्या है? शुड बी प्राइस. शुड बी प्राइस, शेयर का दाम होना क्या चाहिए? शुड बी प्राइस. तो IV0 इक्वल टू PV ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज. PV ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज इक्वल टू 45 by 1.18 plus 48 by 1.18 square plus 48 by 1.18 cube
प्लस 48 बाय 1.18 पावर 4 प्लस 50 बाय 1.18 पावर 5 एंड व्हाट्स द लास्ट टर्म 774. ब्रेक करके लिख दे रहा हूँ. 54 प्लस 720 डिवाइड बाय 1.18 पावर व्हाट 6. ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू का इक्वेशन हो गया. अब काश ऐसा होता, एक मिनट पहले मैं काश के बदले उल्टा बोलता हूँ. अगर अपने ये TVM मोड से करें, TVM, ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म मैं बोल रहा हूँ, आप सेकंड टर्म में हेल्प कीजिएगा. TVM में गए, अभी चालू नहीं करना है प्लीज़, बिकॉज कैलकुलेटर को पहले समझ लेते हैं ना, देन द फ्लुएंसी इज ईजियर. और उस समय ओपन करते हैं तो फिर फालतू में गेट स्टक अप. TVM मोड में पहले तो सेकंड क्लियर TVM, उसके बाद 45 FV बोर्ड पे देखा, 45 FV वहाँ खड़ा है 1 पे, 1N 18 I/Y, 18 I/Y CPT PV. आंसर आया STO1, आंसर आया STO1 स्टोरेज में चला गया. उसके बाद 48 FV 18 I/Y 2N CPT PV. डिड यू नोट कि मैंने क्लियर TVM नहीं बोला बीच में, बिकॉज अगर वही वाला इनपुट्स यूज हो रहा है FV N I/Y, अगर वही यूज हो रहा है तो कैलकुलेटर इज स्मार्ट, इट सब्सटीट्यूट्स, इट डज नॉट ऐड. मतलब प्रीवियस वाला 45 और नया वाला 48 को ऐड नहीं करता है. कैलकुलेटर स्मार्ट है, उसको पहले बोले थे 45 PV FV, अब बोले 48 FV, तो दोनों को अंदर में ऐड नहीं किया. उसने क्या किया, 45 को हटा दिया, अब 48 ले लिया. ओके, बात है मोमेंट्री टाइम सेव करने का. सेकंड क्लियर TVM क्यों करें जब वही इनपुट्स यूज हो रहा है. तो STO2 डाल दिए, उसके बाद 48 FV, इनफैक्ट 48 FV डालना नहीं चाहिए तीसरी बार. देखो ये वाला, ये जो है 48 तो ऑलरेडी उसमें है, तो क्या 48 FV डालना चाहिए? नहीं. क्या 18 I/Y डालना चाहिए? नहीं. सीधा क्या 3N CPT PV. ऐसे करके हम लोग STO1 STO2 STO3 STO4 STO5 डाल सकते हैं. डालने के बाद समझ में आ रहा हो क्या करना है, RCL1 प्लस RCL2 प्लस RCL3 एंड सो ऑन, आंसर आ जाएगा. सही है, ऐसे आंसर आ जाएगा. हाउएवर जब इतने सारे कैश फ्लोज है ना, तो देखा जाए देयर शुड बी अ बेटर टेक्निक. बार डाल रहे हैं, तो लास्ट क्लास वो सिखाया नहीं था, तुम लोग को सिखा रहा था TVM मोड. कौन सा मोड? TVM, टाइम वैल्यू मनी. अब सिखा रहा हूँ कैश फ्लो मोड. क्या मोड? कैश फ्लो मोड, CF मोड. तो जो कैश फ्लो मोड होता है उसमें क्या होगा, कैल्सी अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसमें अपने कैल्सी को बोलेंगे, कैल्सी अपने को स्क्रीन में पूछेगा C1 बता. क्या बोलेगा? C1 बता. हम लोग डालेंगे 45 एंटर, 45 एंटर. कैल्सी पूछेगा 45 कितने बार है, फ्रीक्वेंसी एक ही बार है, तो बाय डिफॉल्ट कैल्सी में फ्रीक्वेंसी 1 है, तुमको दिखेगा स्क्रीन पे, तो तुम स्किप कर देगा आगे. अब उसके बाद C2 बता क्या है, 48 एंटर. फ्रीक्वेंसी 3 दिखा, बिकॉज 3 बार क्यों डाले 48 फ्रीक्वेंसी 3 डाल दिए, स्किप. नेक्स्ट कैल्सी पूछेगा C3 बता, जबकि एक्चुअली वो C3 है कि अपना C5 है, C5 है, बट कैल्सी उसको C3 बोलेगा बिकॉज C1 डाला था आपने, C2 डाला, फिर वो क्या बोलेगा C3. वैसे अपने समझ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हो गया तो C3 है, तो 50 डाले C3, ओके, फ्रीक्वेंसी 1 है, एंटर हो गया. और लास्ट पे कैल्सी बोलेगा C4 बता, तो C4 क्या डालोगे 774. फिर अपने बोलेंगे कैल्सी को एक बटन है जिसका नाम है NPV. क्या नाम है? NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू. एक्चुअली नेट क्यों है, सुनो नेट क्यों है, बिकॉज स्टॉक को, जैसे स्टॉक को अपने बाई कर रहे हैं कितने पे, क्या दाम है इसका 640. तो अगर तुम कैल्सी में 640 को शुरू में नेगेटिव डाल देता, C0 640 नेगेटिव डाल देता, तो कैल्सी क्या करता, वो जो आने वाला है छेट हो उसका PV और माइनस 640 करके नेट आंसर देता. जो आने वाला है माइनस जो जाने वाला है नेट आंसर देता. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू है. बट खैर हम लोग को तो वैल्यूएशन करना है, तो अपने जब C0 पूछा कैल्सी ने C0, तो हम लोग क्या डाले 0. C0 था नहीं मेरे को तो प्रीवी करना था, मेरे को NPV नहीं करना था. तो NPV से PV निकल सकते हैं ना. यस, C0 कुछ मत डालो, C0 कुछ डालो ही मत ना, ठीक है. तो अपने अब जब NPV मांगेंगे कैल्सी से, तो बोलेगा कौन से रेट से, क्या बोलेगा कौन से रेट से, कौन सा रेट बोर्ड पे दिख रहा है 18 एंटर करेंगे, और उसके बाद जाके जो NPV मांगेंगे तो इन दैट केस वो सीधा आंसर दे देगा, ठीक है. तो ऑल्दो हो सकता है सुनने में तुमको TVM मोड बेटर लगाओ, STO1 STO2, बट इट टेक्स मोर टाइम. मतलब धीरे धीरे नए मोड पे एडवांस कर जाते हैं, ठीक है ना. तो उस केस में अभी
कैश फ्लो मोड का नोट्स नहीं लिखा रहा हूँ, पहले अपने कर रहे हैं उसके बाद नोट्स लिखाएंगे, ठीक है। तो देखो बिगिनिंग इज द बेस्ट वे, आप लोग सब जब भी ज्वाइन किए हो तो काश कैलकुलेट एकदम सही तरीके से चलना चालू हो जाए, क्लास का कॉन्फिडेंस उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ठीक है, बहुत एफिशिएंटली लेट्स ब्रिंग आउट द कैलकुलेटर। चलो कैलकुलेटर में आई एम गोइंग वेरी स्लो, जिसके पास भी कैलकुलेटर नहीं है प्लीज़ कहीं नेबर से शेयर करते रहना, ठीक है ना, बिकॉज अगर आपके पास है भी नहीं, आप शेयर भी नहीं कर रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट है मेरा कम्युनिकेशन, ठीक है। देखो ये सेकेंड रो में CF लिखा हुआ है, सेकेंड रो में CF लिखा हुआ है, देखा सेकेंड के बगल में CF दिख गया होगा, तो CF सेकेंड और क्लियर वर्क, CF सेकेंड और नीचे वाला क्लियर वर्क, एकदम नीचे में जो क्लियर वर्क है CLR WRK कर दिए, बाई चांस कोई भी अटका तो CF सेकेंड क्लियर वर्क, इससे क्या हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर पुराना कोई कैलकुलेशन किया हुआ है वो हट गया, फ्रेश। अब कैल्सी के स्क्रीन पे देखो क्या लिखा हुआ है CF0, तो CF0 माने वो बोल रहा है बता फर्स्ट कैश फ्लो, तो हम हमारे फर्स्ट कैश फ्लो नहीं है, नहीं है तो स्किप करें, स्किप करने का है आगे जाने का, एरो डाउन, ये एरो डाउन है ना ऊपर, चलो एरो डाउन, एरो डाउन किए, सबके स्क्रीन पे C01 आ रहा है, C01 क्या था, C01 अपना 45, चलो 45, और देखो स्क्रीन पे एंटर मांग रहा है, वो क्या मांग रहा है एंटर, तो ये रहा एंटर का बटन ऊपर, एंटर, एंटर कर दिए, एंटर कर दिए। अब एरो डाउन, एरो डाउन पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, पूछ रहा है एक ही बार है तो इसलिए स्किप करें, स्किप, तो यानी एरो डाउन, एरो डाउन, ठीक है ना। अब C2 मांग रहा है, C2 बोलो क्या 48, एंटर, एंटर। अब एरो डाउन, फ्रीक्वेंसी मांग रहा है कितना 3, एंटर, ठीक है, एरो डाउन। अब वो नेक्स्ट कैश फ्लो मांग रहा है क्या था 50, एंटर, एरो डाउन, फ्रीक्वेंसी तो 1 ही है तो फिर से एरो डाउन, ठीक है, 2 बार एरो डाउन किया। अब लास्ट कैश फ्लो क्या था 774, एंटर, दैट्स इट। क्या चीज, देन यू हैव टू डू इट अगेन मोर लेस। अगर प्रेस करने के पहले आप डिटेक्ट कर लिए तब तो इससे चेंज हो जाएगा ना ये जो एरो है ऑन ऑफ वाला, बट अगर डाल दिए तो फिर से करना पड़ेगा, नो इश्यूज, यू कांट टेक अप स्पीड एट द फर्स्ट टाइम, अपने वापस से करेंगे एक बार, ये तो मानोगे कि सब प्रोसेस समझ में आ रहा है, थोड़ा सा फ्रिक्शन हो रहा है, यही तो हो रहा होगा, पर प्रोसेस ऐसे नहीं बोल सकते समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, जस्ट रिक्वायर्स अ बिट ऑफ प्रैक्टिस। डाल दिए सारा, NPV का बटन कहाँ है खोजो, NPV दिखा CF के बगल में, सेकेंड रो में CF के बगल में एकदम मिडल में NPV प्रेस कर रहा हूँ, NPV प्रेस किया, क्या स्क्रीन पे क्या पूछ रहा है I, अगर आप बीच में गलती फीड किए हो नो इश्यूज, अपने वापस कर लेंगे, अभी आप मोशन में ध्यान दो, ठीक है। तो I पूछ रहा है व्हाट इज I, 18, 18, 18, एंटर, 18 एंटर। अब पक्का वो आंसर निकाल चुका होगा, तो उसके लिए हम लोग आगे जाएंगे, आगे मतलब एरो डाउन, तो पूछ रहा है स्क्रीन पे NPV चाहिए क्या, चाहिए तो CPT क्या आया 435.15, 435.15 आया, 435.15। इसका मतलब अगर आपको 18% कमाने का मन है तो आपको आज 435 देने को तैयार होना चाहिए, ठीक है। एक बार वापस से करते हैं, चलो शुरू से सब जन, पहले क्लियर वर्क कैसे करते हैं, CF सेकेंड क्लियर वर्क, CF सेकेंड क्लियर वर्क, ठीक है ना। अब CF0 में तो कुछ भी नहीं है, एरो डाउन, आई होप सबके C1 आ रहा है, C1 क्या डालना है 45, 45 के बाद एंटर। अब सुनो थोड़ा स्पीड पकड़ो, जब भी कोई चीज़ का फ्रीक्वेंसी 1 है ना तो टाइम बचाने के लिए 2 बार एरो डाउन प्रेस कर दिया करो, कितने बार 2 बार, बिकॉज स्किप हो जाएगा ना फ्रीक्वेंसी, तो 1 2 फ्रीक्वेंसी स्किप हो गया, बिकॉज 1 तो बाई डिफॉल्ट है, अंदर में 1 बाई डिफॉल्ट है। C2 क्या है 48, 48 एंटर। इस बार केवल एक बार एरो डाउन करना, कितना फ्रीक्वेंसी 3, 3 एंटर, एरो डाउन। नेक्स्ट कैश फ्लो क्या था 50, एंटर। कितने बार एरो डाउन करूं, 2 बार, 2 बार एरो डाउन। लास्ट कैश फ्लो क्या था 774, एंटर, ठीक है, किए एंटर।
अब एनपीवी को प्रेस कर दो, एनपीवी, वो आई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आई। सबसे मेन चीज़ क्या है, तुम अगर कैलकुलेटर के स्क्रीन पे ध्यान दे रहे हैं ना, स्क्रीन पे, कैलकुलेटर के स्क्रीन पे, तुमको अपने आप पता चल रहा है नेक्स्ट क्या करना है। आई 18 है, 18। तुमने सीएफ सेकंड क्लियर वर्क नहीं किया होगा उस समय शायद, वापस से कर लेते, एक बार आगे हम लोग बढ़ते हैं, वापस से कर लेते हैं नेक्स्ट वाला सम, ठीक है ना। तो मैंने आई पूछा, तो मैंने किया एंटर। एंटर करने के बाद एरो डाउन, एरो डाउन के बाद एनपीवी पूछ रहे हैं, ये रहा वो एनपीवी। तो एनपीवी के लिए क्या? सीपीटी 435.15, ठीक है। एक बार अपने कॉपी में स्टेप्स लिख लेते हैं, ठीक है, कॉपी में स्टेप्स लिख लेते हैं, शायद उससे थोड़ा कन्वीनियंस आ जाएगा, बाई चांस कोई स्टकअप हो रहा है तो। लिख दो कैश फ्लो मोड, कैश फ्लो मोड कैलकुलेटर का। तो कैश फ्लो मोड के लिए CF सेकेंड CLR WRK क्लियर वर्क, ओके। CF सेकेंड क्लियर वर्क, बटन भी इमेजिन होगा, बीच का बटन, फिर लेफ्ट और फिर नीचे। उसके बाद स्क्रीन पे C0 है, स्क्रीन पे क्या है? तो स्क्रीन पे जो शॉट आ रहा है मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ, C0 है, ये स्क्रीन शॉट है, ठीक है ना। तो उस पर अपने कुछ नहीं करना है अभी तो इसका मतलब एरो डाउन, ठीक है। एरो डाउन करते हैं, स्क्रीन पे आता है C01, तो मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ स्क्रीन पे जो आता है C01, और C01 पे अपने क्या एंटर करते हैं? 45 लिख दो, एंटर। 45 के बाद एंटर। उसके बाद सिंगल एरो डाउन की डबल एरो डाउन? डबल एरो डाउन, 2 बार एरो डाउन लिख दो। फिर स्क्रीन पे क्या दिखाता है? C02, C02, और इस बार अपने क्या डालते हैं? 48, एंटर। एक बार एरो डाउन, एक बार एरो डाउन होने के बाद मैं वापस बॉक्स बना रहा हूँ, स्क्रीन पे F02 पूछता है, क्या पूछता है? F02, तो क्या डालते हैं अपने? 3, एंटर। फिर एरो डाउन, सही है। उसके बाद वो स्क्रीन पे पूछता है C03, ऑल्दो वो अपना C5 है पर उसके लिए तो 3 है ना, C03, क्या डालते हैं? 50, एंटर। कितने बार एरो डाउन? 2 बार एरो डाउन। नेक्स्ट स्क्रीन पे C04, क्या डालते हैं? 774, एंटर। हो गया सब एंटर। होने के बाद अपने को याद आता है करना क्या है? पीवी निकालना है, तो वी प्रेस एनपीवी, एनपीवी प्रेस किए, प्रेस करते ही वो स्क्रीन पे क्या पूछता है? आई। तो मैं स्क्रीन वाला चीज़ को बॉक्स पे लिख रहा हूँ, तुम भी ये फॉलो कर सकते हो, तो ध्यान रहेगा कि जो प्रेस नहीं करना स्क्रीन पे आ रहा है सब वो बॉक्स पे लिख रहे थे, आई। और जैसे ही वो आई पूछता है अपने क्या डालते हैं? 18, एंटर। 18 एंटर करने के बाद हो गया सब फीड। तो एरो डाउन करते हैं, एरो डाउन करने के बाद स्क्रीन पे एनपीवी आता है, स्क्रीन पे एनपीवी आता है, और अपने क्या करते हैं? सीपीटी, अपने सीपीटी करते हैं, तो अपना आंसर आता है क्या? 435.15, 435.15। तो मैं तुम लोग को ये एडवाइस दूंगा, स्ट्रेस अभी उस चीज़ का नहीं ले कि यार पूरा बैठा नहीं। क्लास के बिगनिंग में बोला ये बिल्डिंग ब्लॉक क्लास चल रहा है, कैश फ्लो के क्लासेस में अपने अलग से 3 या 4 क्लास लेते हैं, यू अंडरस्टैंडिंग। ये आइडिया वाला क्लास चल रहा है, वी हैव टू मूव अहेड, ठीक है। तो और एक एग्जाम्पल परहैप्स करने के बाद, पर वो जो होता है ना किस्सा एकदम पूरा एकदम परफेक्ट 1 घंटे तक किए और एकदम बैठ गया, वो वाला एक्सपेक्टेशन इन क्लासेस से नहीं हो। दीज आर आइडिया ओरिएंटेड क्लासेस, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वाइज यू विल फील दैट सर समझ में तो आ गया, थोड़ा सा हाथ बैठाना है, और नोट्स भी एकदम परफेक्ट लिखा गया है। 435.15, ठीक है, लिख दो IV0 इज इक्वल टू 435.15। अब सिंस मेरा मन है एक बार वापस से प्रैक्टिस हो जाए, बट एट द सेम टाइम मोनोटनस नहीं हो, मोनोटनस कुछ नया सीखे, इसलिए सुना क्या, अगर 435.15 पे शेयर खरीदते अगर, तो घर पे रिटर्न क्या आता? 18%, बिकॉज 18 से पुल करके तो आया है 435। So if you buy at 435, then you will earn 18% per annum. But what's the share price in the market? 640. So I'm asking you mathematically, if we buy at 640, are we going to earn 18 or more than that or less than that? Less than that.
435 पे बाई करेगा तो 18% अर्न करेगा. इफ यू बाय एट 600 एंड क्या 40, ऑब्वियसली यू विल अर्न लेस देन दैट बिकॉज द इनफ्लो इज इंटैक्ट. आएगा उतना ही और जा रहा ज्यादा है. कमाते तो पैसा लगाए हुआ पे ना. आपको ये पता लगाने का मन है, किससे का मन कर रहा है, शायद 13 पॉइंट कुछ या 12 पॉइंट कुछ आएगा, फीलिंग आ रहा है, से 11 पॉइंट कुछ आंसर आएगा. आई वॉन्ट टू फाइंड दैट आउट. उसको बोलते हैं कैल्सी में IRR. क्या बोलते हैं? IRR. उसका बटन देख लो. कैल्सी में IRR का बटन दिख रहा है. ये जो IRR है, ये दिखा. IRR का फुल फॉर्म है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. क्या फुल फॉर्म है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. बट एक मिनट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैल्सी तब निकाल पाएगा जब तुम कैल्सी को C0 बताएगा. और याद है अपने तो C0 बताए ही नहीं थे. अपने C0 बताए नहीं थे. अब मेरे को ऐसे ही चेक करने का मन हो रहा है कि सिंस अपने हर बार क्लियर वर्क करते हो और अभी तक क्लियर वर्क नहीं हुआ है, तो अभी भी उसको C0 बता दे तो क्या हर्ज है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? बाकी तो सब डाला हुआ ही है, C1 C2 C3, तो अभी भी C0 बता दे तो इट शुड टेक. एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, लिखना मत, तुम लोग भी कर सकते हो जिसके फीड किया हुआ है. CF में जा रहे हैं, CF, वो C0 मांग रहे हैं. C0 क्या है? 640. पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव ना, पैसा जा रहा है. तो 640 प्लस माइनस, 640 प्लस माइनस प्लस कर दो, 640 माइनस आ गया, एंटर. और बाकी क्यों डाले? बिकॉज C1 C2 तो डाला हुआ है ही, C1 C2. तो अब कैल्सी को हम क्या बोले भाई, हम 640 लगाए, इतना 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 आने वाला है, बता ना इसके अंदर छुपा हुआ रिटर्न क्या है. सही है. तो IRR, प्रेस IRR, CPT. क्या आंसर है? 9.22%. 9.22% इज द रिटर्न. यू वांट 18% रिटर्न. कोई हालत में ये शेयर बाई नहीं करना चाहिए 640 पे, बिकॉज बाकी जगह पे यू कैन अर्न 18% रिटर्न एंड दिस शेयर विल गिव यू व्हाट? 9.22. इट शुड नॉट बी परचेज ना. ठीक है, एक बार पीछे आते हैं. लिख दो नोट. less sophisticated people ब्रैकेट में स्पेशली traders ब्रैकेट क्लोज do not understand the meaning of IV0. Do not understand the meaning of IV0. उतना इंट्रिंसिक वैल्यू उनको समझ में नहीं आता है. इंट्रिंसिक वैल्यू. Do not understand IV0. Full stop. They want the answer. They want the answer to a simple question. They want the answer to a simple question. They want the answer to a simple question. Dash. क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए देखना, ओपन वर्ड कॉमा, आई वॉन्ट 18%. तो ट्रेडर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आई वॉन्ट 18% पर एनम. देखो, आई वॉन्ट 18% पर एनम. आई वॉन्ट 18% पर एनम. डैश टेल मी what return am I expected to earn? What return am I expected to earn? What return am I expected to earn if I buy the stock? What return am I expected to earn if I buy the stock? If I buy the stock right now, if I buy the stock right now at the current market price, at the current market price of 640, at the current market price of 640. ठीक है, क्लोज इनवर्टेड कॉमा. तो मैंने टोन लिखा है तो समझ में आएगा. वो बोलना चाह रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू सब मत बोल भाई, तुम ये बता हम कितना कमाएंगे. मेरे को रिटर्न समझ में आता है, परसेंटेज इज व्हाट हिट्स माय ब्रेन. तो उसको तो हम लोग को वो बताना पड़ेगा ना. पैरा चेंज देखना. द आंसर टू दिस, द आंसर टू दिस, द आंसर टू दिस इज known by different names. देखो, the answer to this is known by different names. The answer to this is known by different names.